So, welcome everyone. Good evening to everyone. So, we will be starting the coursework, PhD coursework. Good evening, sir. Good evening, everybody. so, according to the schedule, today uh, Gangeshwar sir was scheduled to take the class. So, he is actually um, having some problems. So, he will take the class later. So, today I will take the class. So, starting with the basic information. Hopefully, all of you have got the PPT, no, the PDF file. Let me share that PDF. So, this is the uh, PDF that Madam has shared to all of you. So, uh, these are the guidelines that you have to follow throughout the PhD coursework, and it is very important. Whatever points it is given in the PDF is very necessary to be followed. So, this is the syllabus structure. So your screen is not visible. Let me let me share it first. Is it visible now? No, sir. No, sir. Yes, sir, it is visible. Hmm. Actually, due to network issues, sometimes it becomes Yes, difficult sir, to view visible. the Oh, multimedia sir, content. we have to pin that presentation one. Ah, Yes. So if everybody will pin that one, so presentation will be visible. yeah. So this is the scheme of the examination that will be held. Uh, we already know that research methodology and computer application. This is the actually this is the subject we are going to discuss here. Research methodologies will be taken by someone else, that is Gangeshwar sir, and I will be taking computer applications uh, to some extent, and rest will be, I think, will be continued by another professor. So there will be two papers, term 1, term 2, specific to the subject. So I will request everyone to uh, get ready or get along with their um designing of the syllabus. So discuss the contents with your supervisor and accordingly create the syllabus, because according to the syllabus should not be very large, very extensive, because it will be difficult for you to complete it within the stipulated time. So and the literature survey part will be the presentation part, that you have to present the literature survey related to your um, research, and accordingly will be given the credit and the marks related to that particular activity. So this is the timetable. So 5:45 onwards we will start every day, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, not every day. And uh, so the link that I am going to share will be shared at uh, around 5:40 or 5:35 around. So there is no issues related to that. But if there arises some um, network issues, then there might be some problem. But usually there is no problem at all. So this is the timetable for that we will be following. So any of one of you, if you have any doubts or queries, you may ask me immediately whenever you feel like. So research methodology and computer applications, these two are combined, and it is a single subject, and 50 marks for internal assessment, 25 marks for attendance, 5 marks for assignments, 25 marks for CT. So अटेंडेंस का वेटेज काफी है, 25 मार्क्स का अटेंडेंस है,
50% वेटेज है. I think everybody should attend the lectures because अभी online mode में है, तो from your home or from your office you can attend the lectures. So there will be 2 class tests for RM and CA. CT1 will cover Unit 1 and Unit 2. CT2 will cover Unit 3, 4, 5. So हम जो मैं लेने वाला हूँ वो आपको जो है that will be of 40 marks. That will be in between I think it will be around 25 marks portion I will be taking. So according to the CSVTU rules, 75% attendance is required. 2 assignments need to be submitted. So hard copy बनाना है, उसको स्कैन करके रखना है. Whenever required आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा. 100 marks each for term paper 1 and term paper 2. Subject for term paper 1 and term paper 2 will be decided by the supervisor, course supervisor. So I will request all the candidates to discuss with their supervisors about the syllabus related to term paper 1 and term paper 2. So there will be 2 syllabus that will be creating. Each syllabus will have 5 units and distribute the content in such a way that you are able to complete it within the stipulated time. Don't make it too much extensive. So if a candidate has a research area of data science, then term paper 1 can be big data analytics and Hadoop, and term paper 2 can be programming in Python. So it all depends upon your research area. There is no hard and fast rule related to the contents of the syllabus. You have to decide what the contents will be according to the need of your research. So another example, theoretical computer science अगर है research area, तो टर्म पेपर 1 फॉर्मल लैंग्वेजेस ऑटोमेटा थ्योरी हो जाएगा. टर्म पेपर 2 का जो हो कंटेंट होगा दैट विल बी एल्गोरिथम्स एंड एनालिसिस. से लॉजिकली जो है आपको सोचना है, लॉजिकली आपको सोचना है कि सिलेबस आपको कैसे बनाना है. 5 यूनिट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. आपको जो है हर यूनिट का कोर्स आउटकम्स, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स यूनिट वाइज सोच के रखना है. सो 5 कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 कोर्स आउटकम्स ये आपके होने चाहिए सिलेबस में. सिलेबस के कंटेंट्स के अलावा कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर्स आउटकम्स शुड बी देयर. Course objectives means that whenever a particular person is going to take that particular course or study those contents, what will be the objective of teaching that particular syllabus or of learning that particular syllabus, and outcomes will be what are the knowledge that will be gained, what will be the knowledge which will be gained by the person who is going to complete the course. So after course completion, what all knowledge the person will acquire. So दोनों जो है objectives और outcomes आपको बनाने पड़ेंगे along with the syllabus. So the syllabus should mention 2 textbooks and 2 reference books at least. So ऐसा प्रिपेयर करना है जिसका कंटेंट आप जो है सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट कर सकें within 1 semester. So if you have any research ideas that you have done during your MTech, you can also include that. So you can use that to extend your, if you think that it is worthy enough to be awarded for PhD, then you can continue that particular topic. So it all depends upon you and your supervisor how you plan out things. और इसमें एक बहुत important है that it is actually recommended that you should join some NPTEL, Udemy or Coursera courses
it is not necessary that you should only opt the paid courses. You can opt the free courses also, which are available. But all those courses that you are going to complete, you should get a certificate of completion, and that particular subject area should be uh, the main the you can say the content of the course should exactly match with the research area that you are working with. So रिसर्च एरिया जो है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है कोर्सेज को करें, और कम से कम एक कोर्स या दो कोर्स जरूर करें टर्म पेपर 1 और टर्म पेपर 2 के हिसाब से। ठीक, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। स्पेशली जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह का जो कोर्सेज होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे आपके रिसर्च एरिया के हिसाब से आप कोर्सेज ढूंढ लीजिए, बहुत अच्छे कोर्सेज रहते हैं NPTEL, यूडेमी और कोर्सेरा में। ठीक, सो वो आपको हेल्प करेगा टू गेन सम क्रेडिट्स, एडिशनल क्रेडिट्स आपको उसके मिलेंगे। सो अगेन नाउ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दैट यू हैव डिजाइंड, यू हैव टू क्रिएट क्वेश्चन बैंक। सो ये गाइडलाइंस दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक का। The question bank should contain 25 long questions, 10 marks each. टेन मार्क्स ईच का जो है लॉन्ग क्वेश्चंस रहना चाहिए। दैट इंक्लूड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। तो 5-5 क्वेश्चन सभी यूनिट से रहेंगे, 10-10 नंबर के। ईच क्वेश्चन में हैव सब पार्ट्स। ठीक, और यू कैन सबमिट द कॉपी ऑफ द असाइनमेंट यू हैव सबमिटेड इफ ज्वाइंट ऑनलाइन कोर्स। सो ये दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप अपना खुद का क्वेश्चन बैंक बना के उसको असाइनमेंट के तौर पे आप तैयार करके रखें क्वेश्चन आंसर्स, और उसको सबमिट करेंगे हार्ड कॉपी एज वेल एज स्कैन कॉपी उसका। या तो फिर जो कोर्स आपने अटेंड किया है यूडेमी या NPTEL में, जो कोर्स कंप्लीट किया है, सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा उसमें, और उसमें जो असाइनमेंट्स आपने किए हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप 25 लॉन्ग क्वेश्चंस अगर बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स बनाते हैं 10 मार्क्स ईच के, तो ये आपको जो है हेल्प करेगा टू आंसर द क्लास टेस्ट, क्योंकि सिटीज जिसका जो भी होगा एग्जाम होगा उसमें उन क्वेश्चंस का भी कुछ वेटेज रहेगा, तो आपके जानकारी में रहेंगे क्वेश्चंस। और ये जो है 25 नवंबर 2020 तक हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी सबमिट करना है। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको सबमिट करना रहेगा। Syllabus and question bank are needed to be submitted in hard copy with proper filing, roll number, name, department written on the cover. एक फाइल बना लेंगे। ठीक, तो शुरुआत से ही आप एक अपना खुद का फाइल बना लीजिए PhD फाइल करके। इसमें सभी चीजें आपके पास एक कॉपी रहनी चाहिए। जो भी कॉपी आप डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे उसका एक कॉपी आपके पास भी रहना चाहिए, ये बहुत ही नेसेसरी है। सो आप एक खुद का फाइल बना लीजिए PhD फाइल, और उसमें वो सब कागज जो है, जो भी चीज आप कर रहे हैं सब ऐड करते जाइए उसमें। अभी आने वाले समय में आपको जो है 6 मंथली रिपोर्ट्स भी जमा करना पड़ेंगे। वो सभी कुछ आप अपने पास एज ए कॉपी जरूर रखें, फोटो कॉपी बना के जरूर रखें, सॉफ्ट कॉपी जरूर रखें। ठीक, इवेल्युएशन ऑफ टर्म पेपर 1 एंड टर्म पेपर 2, देयर विल बी 2 असाइनमेंट्स ईच फ्रॉम टर्म पेपर 1 एंड टर्म पेपर 2। Assignment 1 should cover Unit 1 and Unit 2, 10 questions from the question bank, क्योंकि 5 questions from each unit आपके पास तैयार रहना चाहिए। Assignment 1, Assignment 2, Assignment 2 में Unit 3, 4, 5 में रहेगा, 15 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। ठीक, तो Assignment 1 और Assignment 2 मिला के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 questions from each unit।
Assignment 1 carries 10 marks, assignment 2 carries 15 marks. ठीक. So assignment copy should be properly checked by the supervisor. आपको उनका साइन लेना पड़ेगा अपने सुपरवाइजर का, तभी आप उसको सबमिट करेंगे. ठीक. सो जो पीएचडी कोऑर्डिनेटर हैं उनको आपको सबमिट करना पड़ेगा. वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम इन द ग्रुप. ठीक. और इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन और आपको पीएचडी कोऑर्डिनेटर से मिल जाएगा. ठीक. सो ये डिटेल्स आपके पास, सबके पास पीडीएफ फाइल है. मैंने मेन जो पॉइंट्स मुझे लगा आपको बताने के लिए मैंने आपको बता दिया. अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है, प्रेजेंटेशंस फॉर टर्म पेपर 1 एंड टर्म पेपर 2 एंड लिटरेचर सर्वे. सो टर्म पेपर 1 का, टर्म पेपर 2 का और लिटरेचर सर्वे का आपको प्रेजेंटेशंस भी तैयार करना है. पीपीटी प्रेजेंटेशंस आपका रहेगा, वो डीआरसी कमेटी के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. सो उसका भी तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो. इसका भी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी अपने पास बना के रखेंगे, क्योंकि इसको भी जब जमा करने कहा जाएगा तो आपको जमा करना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों, जो पीपीटीज आप बनाएंगे उसका. क्योंकि जो आपके नाम से जो भी बनेगा डॉक्यूमेंट हमारे पास, it will be a separate file for each and every candidate, so that will be maintained in the department. So I will request everyone to maintain the same individually with yourself, so that in future if it is required you can present it, you can prove that you have done the work. Attendance of TP1 TP2 and literature survey, ये आपके सुपरवाइजर के पास मेंटेन रहेगा, आपको रिपोर्ट करना रहेगा सुपरवाइजर को. ठीक. सो अटेंडेंस इज वेरी मच नेसेसरी. लैक ऑफ अटेंडेंस में दिक्कत होता है, बाद में जाके क्वालिफाई करने में दिक्कत होगा. ठीक. सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द लिटरेचर सर्वे. आप लोग जो है यू कैन अंडरस्टैंड, आप खुद ही मेमटेक जिन लोगों ने, आप सबने किया हुआ है, सो यू ऑलरेडी नो हाउ टू परफॉर्म रिसर्च. सो कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, इन गाइडलाइंस को आप फॉलो कर सकते हैं. I will suggest that always go for SCI journals, IEEE journals. So उसमें क्या होता है कि जो भी आप कंटेंट बनाएंगे वो इस स्टैंडर्ड का बनेगा कि आपका जो पेपर बनेगा फ्यूचर, क्योंकि यू नीड टू हैव 2 SCIs in order to complete the research. पीएचडी तभी अवार्ड होगा, मतलब फाइनल के लिए तभी क्वालिफाई कर पाएंगे पीएचडी एग्जामिनेशंस के लिए, फाइनल वाइवा के लिए तब भी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपके पास 2 SCI जर्नल्स में पब्लिश्ड पेपर है. SCI में पब्लिश करना, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क्स फॉर रिसर्चर्स, because it is very very difficult to publish in SCI journals. So I will recommend that all of you should only refer those journals, study from those journals which are SCI or which are IEEE, having high standards. Then only the contents that you will be writing in your research would become applicable or acceptable to the SCI journals editorial teams. So it is very difficult to publish papers in SCI journals. So अभी से तैयारी कर लें तो अच्छा रहेगा, बाद में दिक्कत हो जाता है नहीं तो. अच्छा, एक और चीज मैं आपसे रेकमेंड करूंगा, दैट डू नॉट पब्लिश योर पेपर्स इन एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स विच आर नॉट SCI और विच आर नॉट IEEE, और सम स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका. लोकल जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं उसमें अपने पेपर्स को पब्लिश मत करिए. उसमें क्या होगा कि आपका कंटेंट ऑनलाइन एक बार चला गया तो आप अगर उसको फिर से यूज करना चाहें तो SCI जर्नल्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या स्टैंडर्ड जर्नल जो होते हैं IEEE या SCI, स्कोपस इंडेक्स जर्नल जो रहते हैं वो उनको रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज दे हैव एन एक्सटेंसिव, दे हैव अ वेरी एडवांस सॉफ्टवेयर दैट कैन पिक अप द कंटेंट्स फ्रॉम द वेब.
सो आपका एक बार कंटेंट वेब पे चला गया तो वो कंटेंट आपका एक बार हो गया तो आप उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। एससीआई जर्नल्स में आप भले ही बोल दें कि ये मेरा ही कंटेंट है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। आपको एक समथिंग न्यू यू हैव टू प्रेजेंट। एससीआई जर्नल्स में तभी प्रिंट हो पब्लिश होगा when something new you have presented or you have proposed. So already if it is existing in the web, it is nothing new then. So that becomes a very difficult task. So I will recommend that do not publish your papers in non-reputed journals or places where which are not of standard, क्योंकि आपको अपना कंटेंट को बचा के रखना है फॉर एससीआई जर्नल्स। सो कंटेंट एक बार आपका ऑनलाइन चला गया तो फिर आप उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। सो इसको आप एज ए गाइडलाइन आप फॉलो कर सकते हैं इफ यू वांट, बाकी आपको डिसाइड करना है। ठीक। सो ये आपके जो है बेसिक गाइडलाइंस था। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो मुझे पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स रिलेटेड टू वट एवर वी हैव डिस्कस नाउ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो टर्म 1 एंड टर्म पेपर होता है ये हम अपने एमबीए में जो हमने स्पेशलाइजेशन किया है उससे हम ले सकते हैं? हाँ, जैसे आपने जिसमें भी आपका काम हुआ है, आपको लगता है कि वो पीएचडी के मतलब लेवल तक आप ले जा सकते हैं उसको, तो आप बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट में ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा, मेन चीज है वो आपके रिसर्च को जस्टिफाई करना चाहिए। जो टर्म पेपर 1 टर्म पेपर 2 है तो आपके रिसर्च को जस्टिफाई करना चाहिए। ओके सर। ठीक। सो कोई भी ऐसा कंटेंट मत डालिएगा जो आपके रिसर्च से कनेक्टेड नहीं है। नहीं सर, मैं जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग या इंटरनेशनल रिसर्च का मेरे माइंड में है, तो इसलिए मैं अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करके तो मैं अपना कोई भी जो मैंने स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस से ही किया है तो उससे भी कोई 2 सब्जेक्ट में ले सकता हूँ, टर्म 1 एंड टर्म पेपर में, जो कि मुझे हेल्प करेगा इंटरनेशनली रिसर्च करने में। हाँ, नहीं, जैसे आपके पीएचडी का जो टॉपिक रहेगा, जिसको आप पीएचडी का टॉपिक लेके चलने वाले हैं, उससे कनेक्टेड होना चाहिए, बस उससे रेलेवेंट होना चाहिए। ओके, ठीक है। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस इतना ही है कि आपको सिर्फ अपने पीएचडी का जो रिसर्च एरिया है उससे रेलेवेंट होना चाहिए, बस उसका रेलेवेंस उसमें रहना चाहिए। ठीक है सर, दैट इज एनफ। थैंक यू सर। वेलकम सर। जी मैम, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सिलेबस क्रिएशन आपने बोला जी, तो सर एक बार ब्रीफ करेंगे क्या? मुझे क्लियर नहीं हुआ सिलेबस क्रिएट करना इन द सेंस। हाँ, एक सेकंड ना, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। मैं एक सैंपल को शेयर कर रहा हूँ अभी, एक सेकंड। ठीक, ये पीडीएफ आपको दिख रहा है? जी सर। जी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा हुआ है, जैसे ये सिलेबस है, जैसे जो आप लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, तो उसमें जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च डिजाइन, ये लिखा हुआ है। जी सर। तो ये आपको करना है क्या है कि 5 यूनिट्स में डिवाइड करना है। यूनिट 1 में क्या रहेगा, यूनिट 2 में क्या रहेगा, यूनिट 3 में क्या रहेगा, यूनिट 4 में क्या, ये आपको डिसाइड करना है। ओके। तो कंटेंट जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। जी। आपको अपना कंटेंट बनाना है आपके रिसर्च एरिया के हिसाब से। अच्छा, ओके सर। ठीक है। जैसे हाँ, ये सब ये है, और ये रेफरेंस बुक्स हैं। रेफरेंस बुक्स आपको देने हैं और टेक्स्ट बुक्स देने हैं। 2 टेक्स्ट बुक्स और 2 रेफरेंस बुक्स आपको मेंशन करना है। आप सिंपली क्या करें, सबसे आसान तरीका क्या रहता है कि आप जो है आपके रिसर्च से कनेक्टेड कोई अगर बुक आपने पढ़ी हो जी, वो बुक उठा लीजिए, उसके जो यूनिट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, उसको आप अपने यूनिट वाइज उसको डाल दीजिए। 5 यूनिट में आपका रेलेवेंट जो कंटेंट है, पूरा बुक का जरूरत नहीं है, जो रेलेवेंट कंटेंट है उसको आप अपने
सिलेबस में डाल दीजिए, 5 यूनिट्स बना लीजिए और उसको आपके टेक्स्ट बुक में आप उसको कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए, ओके सर। है ना। तो इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। ओके मतलब करना ऐसा है कि आपको खुद को तकलीफ नहीं होना चाहिए बाद में जाके। जी सर। हेलो सर, एक चीज और पूछनी थी। जी बोलिए। हम लोग के पास रिसर्च मैथोलॉजी का और कंप्यूटर एप्लीकेशन का जी सिलेबस हमें कब मिलेगा? सिलेबस तो मेरे पास अभी है, मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा ठीक अभी है मैं, सर। हाँ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है सर। ठीक है, अभी मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ वही चीज। आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आ रहा है क्या, आपको दिख रहा हाँ सर, आ रहा है सर, आ रहा है, है? हाँ दिख रहा है। बस इसी को मैं शेयर कर दूंगा। ये है अच्छा एक्चुअली सर। हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो यही है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, फिर ओके। स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन टूल्स। ठीक, तो हम्म वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट मतलब अपना जो पीपीटीज हम बनाते हैं, सॉरी हम्म एक्सेल एक्सेल हो गया, और हम्म, प्रेजेंटेशन टूल हो जाएगा आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं। ओके सर। ठीक, और बाकी जो पार्ट है रिसर्च कम्युनिकेशन वगैरह का जो है ना, ये हम्म, आप जो है एक और प्रोफेसर हैं वो पढ़ाएंगे आपको, अच्छा सर। लेटेक के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक, ओके। सो this is the portion that we will be covering in computer applications. ओके So सर। I will be taking your classes for 2 weeks maximum. उसमें ये ओके, सब मैं कवर कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक, सर कोई कोई हम लोग के कोई बुक परचेज कर सकते हैं मार्केट से, ये जिसमें ये सब सिलेबस की सारी चीजें प्रेजेंट हो, ताकि हम हाँ पहले से ही ये पढ़ के रेफरेंस रखें? बुक्स दिया हुआ है, लेकिन अच्छा मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगा बुक्स का, अच्छा। अच्छा क्योंकि कंटेंट्स जो है इतना ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब एक्सटेंसिव नहीं है कि आपको इसमें बुक्स लेना पड़े। आप ऑनलाइन से भी इसको जो है पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अच्छा कंटेंट आपको बहुत मिल जाएगा इसमें, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। है ना। ठीक है सर। रिसर्च में मेथोडोलॉजी में भी जो है आप जो जो भी पढ़ाया जाएगा वो काफी एक्सटेंसिवली पढ़ाया जाएगा। हम्म, उसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप रेगुलर क्लास अगर अटेंड करेंगे तो आपको नोट्स का कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इतना कंटेंट रहेगा आपके पास। ओके सर। ठीक, थैंक यू सर। गुड गुड इवनिंग सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ पूछिए सर। आपने पीपीटी बनाने के लिए बोला, तो जो पीपीटी हम लोग बनाएंगे वो पेपर जी 1 और जी, पेपर 2 के अकॉर्डिंग रहेंगे, या फिर कोई अलग से टॉपिक पे बनाना होगा जो हमारे रिसर्च का नहीं सब्जेक्ट नहीं, है? उसी टॉपिक से कनेक्टेड, सब कुछ टॉपिक रिलेटेड रहेगा, हर चीज टॉपिक रिलेटेड है। टर्म तो पेपर जो 1 पेपर टर्म 1, पेपर 2 का जो सिलेबस है ना उसके बेसिस पे ही बनेगा, ओके ओके है ना। और रिसर्च जो लिटरेचर सर्वे आप करेंगे उसके ऊपर भी बनेगा, मतलब 3 मेन प्रेजेंटेशंस आपके बनेंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए। सो अभी आई विल कंटिन्यू नाउ। आज का कंटेंट मैं आपको शुरू करता हूँ। So I forgot to introduce myself. My name is Dr. Partha Roy. I am associate professor in Bhilai Institute of Technology, Durg in CSE department. So today we'll start with introduction to Microsoft Word. So that is the part of the computer applications syllabus. So we'll start with Microsoft Word. So इसमें आपको जो है आई थिंक एवरीबडी हैज वर्कड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एवरीबडी नो अबाउट each and everything related to Microsoft Word. Just for kind of a revision kind of a thing, it will be. So introduction to Microsoft Word में we'll start with. I will recommend that everyone should have at least Microsoft Word 2013 and onwards. क्योंकि जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 एंड ऑनवर्ड्स के लिए है। सो मिनिमम 2013 आपके पास होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिस पे आप काम करें। जो भी मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊंगा आप उसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ठीक, सो
starting with the Microsoft Word, in order to create a new document, आप जो है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे रेड मार्क आपको दिख रहा है. आप चाहे तो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हैं. एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर नीड. सो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं विद ब्लैंक डॉक्यूमेंट. इसमें जो सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर में, जहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके दिखा रहा हूँ, दैट इज नोन एज द क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो कुछ फैसिलिटीज हमको देता है क्विक एक्सेस के लिए. जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ. सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो एक बटन बना हुआ है यहाँ पे, ये सेव के बाद, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 है. सो यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार लिखा हुआ है. उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे. सो क्विक एक्सेस टूल बार में देखिएगा सेव, अनडू, रीडू लिखा हुआ है. इसमें टिक मार्क लगा हुआ है, बाकी सब अनचेक्ड है. सो व्हाट डज इट मीन? दिस इज द रिबन वेयर द क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे ये अनडू का दिया हुआ है, एक रीडू का दिया हुआ है और एक सेव बटन दिया हुआ है. ये इस कारण दिया है बिकॉज आई हैव चेक्ड ऑल दिस, सेव, अनडू, रीडू. इफ आई वांट आई कैन ऑल्सो ऐड द कंटेंट्स इन द टूल बार. जैसे ये आ गया न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए. ओपन एग्जिस्टिंग कोई डॉक्यूमेंट उसको ओपन करना है, ठीक. क्विक प्रिंट के लिए, ठीक. तो ये सब ऑप्शंस आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड या डिलीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है. सो आप उसको ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे ऐड और रिमूव कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट. इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलेंगे. ठीक, चलिए. अब हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में अपने एक बेसिक इंफॉर्मेशन लिया है. तो अपना नेक्स्ट आता है ये जो होम टैब है. These are the tabs which are there: home, insert, design, page layout, references, mailings, review and view. ठीक. सो ये होम टैब है. होम टैब में जो है सबसे पहला जो बेसिक टैब है होम टैब, वेलकम टैब कह सकते हैं एक तरीके से, जो शुरुआत में खुल जाता है. होम टैब में देयर आर सम ग्रुप्स. एक क्लिपबोर्ड करके ग्रुप है, फॉन्ट करके ग्रुप है, पैराग्राफ करके ग्रुप है, ठीक. और स्टाइल्स करके एक ग्रुप है, ठीक. ये पूरा को पूरा जो है ये होम रिबन कह सकते हैं. इसको रिबन बोलते हैं, ठीक. और जो टॉप में है टाइटल है, जिसमें जैसे हम सेव करेंगे तो तुरंत बताएगा कि उसका टाइटल क्या रखा अपन ने. बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 करके हमको दिखाता है. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे छोटे छोटे जो सिंबल्स बने हुए हैं, ये इनको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. अभी मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में. उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं वो रूलर है. ये रूलर को ऑन ऑफ किया जा सकता है. रूलर ऑन रहने से आपको आसानी पड़ता है टू ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द एक्सटेंट इन विच योर कंटेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक. सो दिस इज द वाइट एरिया जिसको वर्किंग एरिया बोलते हैं. और उसके नीचे आप ऑब्जर्व करेंगे बॉटम में स्टेटस बार है. स्टेटस बार में नंबर ऑफ वर्ड्स, पेज नंबर, if there are more than 1 pages then page number of particular number of pages, जैसे 1 of 100, किस पर्टिकुलर पेज नंबर पे आप हैं वो बताता है. यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स प्रेजेंट इन द एंटायर डॉक्यूमेंट. आप जैसे जैसे सिलेक्ट करते हैं वर्ड्स को, वो नंबर ऑफ वर्ड्स भी बताएगा कितने वर्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं. और ये लैंग्वेज बता रहा है, यू कैन सेट योर लैंग्वेज हियर.
सो इंग्लिश लैंग्वेज में काम करना है तो इंग्लिश हम सेट करते हैं जनरली इसमें। और राइट हैंड साइड में आप जूम स्लाइडर है, जिसको कंटेंट को जूम अनजूम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक, सो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन द पीपीटी प्रेजेंटेशन। सो ये क्लिपबोर्ड है, ये लॉन्चर है। ठीक, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एरो मार्क लगा हुआ है, लॉन्चर है। जैसे मैं फॉन्ट है, फॉन्ट को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए फॉन्ट का जो है विंडो लॉन्च होता है, इसको लॉन्चर बोलते हैं। सो यहाँ पे आप जो यहाँ पे देख रहे हैं फॉन्ट वाले एरिया में, इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको यू कैन ऑब्जर्व द सेटिंग्स। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। वेलकम टू रिसर्च। जैसे मैंने इसको लिखा है वेलकम टू रिसर्च, और इसको जो है मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज इसकी चेंज करनी है। सो आप यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू मिलता जाएगा। स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट किया इसको, तो देखिए अपना जो है जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं सभी कुछ कैपिटल्स में है, लेकिन स्टार्टिंग जो वर्ड के लेटर्स हैं वो कैपिटल में आ रहे हैं। ठीक, सो जो हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखे थे वो थोड़ा सा साइज उसका थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और जो स्मॉल लेटर्स में लिखे थे उसका साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन सभी कुछ कैपिटल लेटर्स में दिख रहा है हमको। सो ये डायलॉग लॉन्चर है, ये अपना लॉन्चर है जिसको यूज करके आप एडवांस सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में आप जाके स्पेसिंग, जैसे मैं एक्सपैंडेड स्पेसिंग कर रहा हूँ और आई वांट टू मेक इट मोर स्पेस्ड, से यहाँ पे मैं स्पेसिंग जो है वो फैला देता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। ये तो लॉन्चर है, ये गिव्स यू एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ वॉट एवर द टेक्स्ट इज प्रेजेंट। इसमें जो भी शॉर्टकट्स दिए हुए हैं उनके अलावा भी आपको कुछ एडिशनल इसमें आपको बेनिफिट्स मिलता है, ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक, सो ये आपका हो गया रिबन, इसको बोलते हैं रिबन बोलते हैं। सो इस रिबन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यू कैन कोलैप्स द रिबन इफ यू वांट। फिर वापस अगर रिबन को आपको लाना है तो आपको वापस टैब पे क्लिक करना पड़ेगा और इसको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पिन द रिबन लिखा हुआ है, पिन कर दीजिए, वापस आ जाएगा। सो दीज आर द वेरी बेसिक सेटिंग्स दैट यू कैन डू। नीचे में देखिए ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे बता रहा है तीन, जैसे मैंने कहा था 3 वर्ड्स हैं। अभी मैंने सोच लीजिए कि सिलेक्ट किया है वेलकम को, ये बता रहा है 1 of 3 वर्ड्स सिलेक्टेड है। अब मैं 2 और वेलकम दोनों को सिलेक्ट करना, बता रहा है 2 of 3 वर्ड सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपको पता लग जाएगा, और कितने वर्ड्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको बताते जाएगा। पेज नंबर का भी वही सीन है कि पेज नंबर जो है आपने अभी कौन से करंट पेज नंबर कौन सा चल रहा है और कितने टोटल पेज नंबर्स हैं। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम क्रिएटिंग 2 पेजेस नाउ। ऑब्जर्व दैट आई एम इन सेकंड पेज ऑफ 2 पेजेस। अगर मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ देखिए पेज पे, तो आई एम इन पेज 1 of 2 पेजेस। सो दैट इट हेल्प्स अस। ये जो अपना स्टेटस बार है वो हेल्प करता है हमको बताने, काफी कुछ इंफॉर्मेशन देता है। और यहाँ पे आप लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन द लैंग्वेज सेटिंग, अकॉर्डिंगली द ग्रामर विल बी चेक्ड। ठीक, सो अकॉर्डिंगली द ग्रामर विल बी चेक्ड। अगर आपको ग्रामर चेकिंग नहीं करना है, कई बार क्या होता है कि जैसे हम ग्रामर यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे डू सम स्पेलिंग मिस्टेक से। ठीक, सो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक मेरे को बता रहा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक मुझे बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं डू नॉट चेक करके दे दूं, या देखिए ऑब्जर्व करिए, मैंने यहाँ पे डू नॉट चेक पे क्लिक किया है, स्पेलिंग और ग्रामर, तो यहाँ पे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करना बंद कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये अनचेक्ड रहता है, मतलब इट विल चेक द ग्रामर एंड अदर ग्रामर एंड स्पेलिंग सेटिंग्स। ठीक, सो यहाँ से आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे जूमिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जूम इन ज़वाट के लिए।
So these are the very basic things that are there. इसमें किसी को कोई कुछ पूछना है क्या अभी जो अपन डिस्कस किए हैं अभी तक टिल नाउ? अभी जो है मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे आई वांट टू चेंज सम सेटिंग्स हियर. सब यहाँ पे मैं इसको मैंने व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम सिलेक्टिंग द एंटायर टेक्स्ट, राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट, गो टू फॉन्ट. सो फॉन्ट डायलॉग को पॉपअप कराने के लिए मैं ऐसे भी जा सकता हूँ. और यहाँ पे जो है जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट और ये जो है स्मॉल कैप्स नहीं है, और मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ. से आई वांट टू मेक इट रेड एंड I want to say give it a background yellow. So I have selected the entire text, given it the background. यहाँ पे this is the background color, text highlight color है, और this is the font color. ठीक. अब यहाँ पे जो आ गया है, जो फॉर्मेट यहाँ पे आया है, I think I want this format to be present here also. Welcome to research जो लिखा हुआ है, उसमें भी मुझे ये सेम फॉर्मेट को एस्टेब्लिश करना है, बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेस और ऑल द स्टेप्स. सो बहुत आसान सा एक तरीका होता है. जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसका भी मुझे फॉर्मेट को कॉपी करना है, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे, क्लिक कर लेंगे. जैसे हम इसको देखिए, मैंने क्या किया ऑब्जर्व करिए कि व्हाट आई हैव डन, आई हैव सिलेक्टेड द टेक्स्ट व्हिच इज हैविंग द नेसेसरी फॉर्मेटिंग दैट आई वांट टू डू. आई हैव सिलेक्टेड द टेक्स्ट, I have selected format painter on the leftmost corner in the ribbon, home ribbon. ठीक. उसको क्लिक करते ही देखिएगा इसमें जो है पेंट का ब्रश का वो सिंबल आ गया है. इफ आई सिलेक्ट नाउ, से वेलकम को मैंने सिलेक्ट कर दिया सिर्फ, तो उस पर वो इंप्लीमेंट हो जाएगा. देखिए जो दिस इज टेस्ट करके जो अपन ने बनाया था, उसमें जो भी सेटिंग्स था वो वेलकम में आके सेट हो गया. ठीक. तो ये चीज आप कर सकते हैं. जैसे रिसर्च में जैसे जो भी मैंने लिखा हुआ है, जो भी इसका फॉन्ट सेटिंग जो भी है, मैं फॉर्मेट पेंटर में जा रहा हूँ और दिस इज टेस्ट पे उसको इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ. सो दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस इज टेस्ट. सो इसमें जो है थोड़ा सा मेहनत बच जाता है आपका. सो व्हेन यू आर राइटिंग सम रिसर्च पेपर्स, देयर इज सम नीड दैट ड्यूरिंग राइटिंग द पेपर्स यू नीड a particular formatting to be present in particular areas only. से हेडर जो होता है ऑफ अ टॉपिक, उसके ऊपर एक अलग फॉन्ट सेटिंग होती है. उसका एब्स्ट्रैक्ट के अंदर में जो कंटेंट होता है उसका भी एक फॉन्ट सेटिंग अलग होता है. तो आप उसको चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप्स ऑफ री इम्प्लीमेंटिंग द एंटायर थिंग. सो ये फॉर्मेट पेंटर से आप इसको कर सकते हैं. बहुत आसान सा एक तरीका है. एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा अकॉर्डिंग, बिकॉज all is related to the research, because you will be writing your research papers in Word documents, then you will be converting them into PDFs. तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया पूरा टेक्स्ट को, and I don't want any kind of formatting. This is required when, say for example, you have copied some text from web for your research purpose, और उसमें जैसे आपने कॉपी किया, because MS Word is quite intelligent in that particular sense, it will try to also follow the formatting that is there in the web, but you don't want to. तो आप चाहते हैं कि वो सिंपल टेक्स्ट करके वो आ जाए, उसमें कोई फॉर्मेटिंग ना रहे. तो जो आपने कंटेंट कॉपी किया था वेब से या कहीं और सोर्स से, फ्रॉम एनी सोर्स, यू हैव कॉपीड इट हियर एंड यू वांट टू रीसेट द फॉर्मेटिंग. So what you need to do is just to select the entire text for which you want to reset the formatting and go here. यहाँ पे देखिएगा clear all formatting लिखा हुआ है. So this rubber kind of thing is there. So just click it. So ये default setting में आ जाएगा, जो default था उसमें आ जाएगा. इसकी background setting जो थी यहाँ पे, इसको आपको no color में convert करना पड़ेगा. बाकी जो setting था वो एकदम default में आ जाएगा. ठीक. So this is one of the very important shortcuts that you will be needing while writing your research papers. ठीक. So यहाँ पे हम जो है
यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क हियर? Okay, then I will move on to the presentation part. So ये चीज अभी अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पे, एक बेसिक मैंने आपको बताया कि हाउ द होम टैब लुक्स लाइक. Next we'll move on to the print layout. You can select the layout actually. You can change the layout. तो लेआउट चेंज करना हो, जैसे प्रिंट लेआउट है, रीड मोड है, वेब लेआउट है, उसका आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं. सो उसके लिए जो है यहाँ पे आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ. अब जैसे यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे लेआउट आपको अगर देखना है, जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे नीचे कॉर्नर में बॉटम में वेब लेआउट लिखा हुआ है. सो इफ यू क्लिक हियर यू विल गेट इनटू वेब लेआउट. सो दिस एंटायर कंटेंट जो एज एन HTML कैसे दिखेगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. उसको सेव एज करके आप जो है एज ए HTML पेज भी सेव कर सकते हैं. सो हियर यू गेट द वेब लेआउट. दिस इज द प्रिंट लेआउट. प्रिंटिंग करते वक्त कैसे दिखेगा उसका लेआउट है. दिस इज द रीड लेआउट. ठीक, तो रीड मोड में अगर लेके आना है कि आपको पढ़ना है कंटेंट को, तो आप रीड मोड में लेके उसको देख सकते हैं. जनरली हम इसको प्रिंट लेआउट में रखते हैं. ठीक, सो दैट इज मोर कंफर्टेबल. जनरली हम ऐसे ही यूज करते हैं इसको. ठीक, नेक्स्ट जो है, अब जैसे ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे मेरा रूलर नहीं दिख रहा है मेरे को. यहाँ पे रूलर नहीं दिख रहा है. तो रूलर के लिए जो है व्यू टैब पे जाना है. व्यू टैब में जाने के बाद रूलर को क्लिक कर देंगे तो विल गेट द रूलर हियर. ठीक, सो यू कैन गेट द रूलर. अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो रूलर हट जाएगा, चेक करते हैं तो रूलर आपको वापस मिलेगा. सो ये अपना व्यू टैब में अपन ये सब चीज देख रहे हैं. व्यू टैब में ये सब चीजें आप देख सकते हैं. अच्छा, एक और चीज मुझे बताना था, जैसे होम टैब में, जैसे यहाँ पे अपन हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम अलग अलग स्टाइल्स में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग जो दिया है, इट विल क्लियर और द फॉर्मेटिंग, जैसे अभी मैंने बताया था शॉर्टकट. सो यहाँ पे आप जो है अपने कंटेंट को अलग अलग स्टाइल्स में प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द स्टाइल्स विच आर बीइंग गिवन. अकॉर्डिंगली द कंटेंट विल बी अरेंज्ड. उसके ऊपर जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, सो ये जो स्टाइल्स हैं ये आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं. उसके बाद ये जो है जस्टिफिकेशन, आपका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर जस्टिफाई करना है, राइट जस्टिफाई करना है, या फुली जस्टिफाइड करना है. फुली जस्टिफाइड करने से आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे कुछ कंटेंट्स मैं लिख रहा हूँ. अब ऑब्जर्व करेंगे जो कंटेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं वो जो है जस्टिफाइड कंटेंट है. इसको सेंटर अलाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कंटेंट्स में फर्क आया है. ये मिडिल अलाइन हुआ है. लेफ्ट करेंगे तो दिखेगा लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट आया है. राइट साइड वाला एरिया जो है खाली दिख रहा है. अगर इसको जस्टिफाइड करते हैं तो कंटेंट जो है वो पूरा पेज को कवर करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो जनरली जब whenever you will be writing your research papers you will be using full justified. ये जो जस्टिफिकेशन वाला जो है, जस्टिफाई जिसको बोल रहे हैं, distribute your text evenly between the margins. So this you have to put. हम लोग लेफ्ट जस्टिफाइड कभी भी नहीं करते हैं. जो भी कंटेंट हम लिखते हैं लेफ्ट जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी सेंटर, इट शुड बी कंप्लीटली जस्टिफाइड. लेफ्ट अलाइन नहीं होना चाहिए, जस्टिफाइड रहना चाहिए ऑन बोथ द मार्जिन्स. तो ये आपको यूज करना पड़ेगा व्हेन यू आर राइटिंग योर रिसर्च पेपर्स. एंड these are the bullets that you can use. So if you have more than one line and you want to put some bullets, you can put some bullets here. You can change the bullets if you want.
ठीक है, बुलेट का आप जो है टाइप्स चेंज कर सकते हैं। ठीक ठीक, अब यहाँ पे जैसे आपको ये पर्टिकुलर जो लाइन है, इसको आपको जो है इस पर्टिकुलर लाइन का चाइल्ड बनाना है। तो उसके लिए आप जो है ये इंडेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन क्लिक ऑन द इंडेंटेशन, यू कैन ऑब्जर्व दैट इंडेंटेशन क्रिएट हो गया है। तो दिस इज बोलना चाहिए इसका जो है वो सब पॉइंट जैसे बन गया है। सेम चीज जो है आप इसको कर सकते हैं, अगर से न्यूमेरिक वैल्यूज देना हो तो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका 1 2 आ गया, और इसका जो इंडेंटेशन वाला था उसको जो है ए मार्क किया है उसने। सो दिस ऑल्सो यू कैन एडजस्ट हियर। आपको अगर 1.1 1.1.1 इस टाइप से अगर यूज करना है तो भी आप उस टाइप का सेटिंग कर सकते हैं। देखिए ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज when you are writing your research paper there will be some sub parts, there will be some main points रहेंगे, उसके सब पॉइंट्स रहेंगे। सो आपको जो है उसकी नंबरिंग प्रॉपरली करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं टैब दबा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन के लिए एंटर दबाया। सो ऑटोमेटिकली 1.2 बता रहा है। 1.2 में मैंने कुछ कंटेंट लिखा। सो दिस इज माय कंटेंट and I want this content to be the sub content of 1.1. So यहाँ पे मैं क्लिक करके if I press tab then it becomes a sub content of 1.1. ठीक, तो ये जो है it is needed when you are writing your research paper, जहाँ पे आपको जो है नंबरिंग जो बुलेट्स है वो प्रॉपरली देने पड़ते हैं। तो ये ऑटो में रहेगा तो आपको आसान पड़ता है कंटेंट बनाने में। एक तो हर चीज को जस्टिफाइड होना चाहिए, जितना भी कंटेंट है वो मार्जिन टू मार्जिन जस्टिफाई रहना चाहिए, इस पे जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक, प्लस इसमें जो है एक और आपको एडवांटेज मिल रहा है कि दैट यू कैन गिव द लाइन स्पेसिंग। तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग यू वांट। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है हमारे पास। सो बिफोर एंड आफ्टर, हाउ मेनी पॉइंट्स यू वांट टू गिव एज लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे है सिंगल 1.5 लाइन्स का स्पेसिंग है, डबल पॉइंट्स का स्पेसिंग है, मल्टीपल्स में स्पेसिंग देना है। So it is actually required because when you are writing paper for any journal, they will specify that amount of spacing that is required. Also, it is very important that you should follow um, the the conventions of the journal about the font type. Generally, टाइम्स न्यू रोमन में रहता है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसपे हम लोग लिखते हैं। सो ऑलवेज क्रिएट योर कंटेंट यूजिंग टाइम्स न्यू रोमन, और उसमें जो है फॉन्ट साइज भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है बाय द जर्नल। सो जनरली जो है वो 12 का एक बेसिक साइज होता है जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक, सो अच्छा, एक और चीज इसमें है, हमारे पास एक फैसिलिटी दिया हुआ है, ये आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो है शो हाइड जो सिंबल है, ये वाला पैराग्राफ मार्क वाला सिंबल है। इससे हमको पता लग जाता है कि हमारे कंटेंट कहाँ पे पैराग्राफ, कहाँ पे एंटर, मतलब एक न्यू लाइन क्रिएट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक न्यू लाइन क्रिएट किया था, इसके बाद एक न्यू लाइन है, इसके बाद एक न्यू लाइन है। ठीक है, अब इंडेंटेशन में देखिए यहाँ पे बता रहा है। तो दिस इज डिस्प्लेइंग द इंडेंटेशन ऑल्सो एरो मार्क से। ठीक, सो इस टाइप से जो है आप देख सकते हैं पैराग्राफ मार्क्स, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एंटर दबाया था, वो पूरा सिंबल यहाँ पे बता रहा है। तो इसमें ये एडवांटेजेस क्यों है, बिकॉज इन योर कंटेंट देयर माइट बी एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हो सकता है आप जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव कॉपीड सम कंटेंट फ्रॉम द वेब, इट इज कंटेनिंग सम स्पेसेस, यू डोंट नो अबाउट देम बिकॉज वाइट स्पेसेस है, दिखेगा नहीं। तो आप तुरंत इस सिंबल पर क्लिक कर देंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग दिए हुए हैं या पैराग्राफ्स बने हुए हैं, उनको आप हटा सकते हैं इफ यू वांट। ठीक, एक बार चेक कर लिया, उसके बाद इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, एंड अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कंटेंट को
देखिए मैंने अभी सॉर्ट किया, आप ऑब्जर्व किया, मैंने अभी सॉर्ट किया। देखिए यहाँ पे इस कंटेंट को आई हैव सिलेक्टेड द कंटेंट एंड आई हैव सॉर्टेड इट। सॉर्ट करते साथ ही आप ऑब्जर्व करेंगे वो पूछ रहा है कि पैराग्राफ्स को sort करना है क्या, मैंने बोला यस, टेक्स्ट के हिसाब से यस, देखिए सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो ऊपर आता है और जो ए है वो नीचे आया, कैपिटल ए नीचे आया, तो इट इज सॉर्टेड। तो इसमें सॉर्टिंग करना बहुत ईजी है। दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट इट। ये आपको कब काम आएगा? व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग रेफरेंसेस, व्हेन यू आर राइटिंग रेफरेंसेस टू योर रिसर्च पेपर, द रेफरेंसेस शुड बी सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको ये जो है फैसिलिटी जो है वर्ड का बहुत आपको काम आएगा, सॉर्टिंग वाला, बिकॉज रेफरेंसेस नीड टू बी केप्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर। सो अलग से आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, जेड कहाँ है, ये सब देखने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप उसको कंटेंट को पहले जमा लीजिए। जैसे अभी मैं इस कंटेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अभी मैं एक, मेरे पास अभी एक रिसर्च, एक सेकंड ना, आई विल ट्राई टू गिव एन एग्जांपल हियर। I have a research paper. I'll just copy the content here so you can get an idea. So ये मैं कंटेंट को कॉपी करके लाया हूँ। Hopefully you will be able to see the content. अब ये जो ऑब्जर्व करेंगे, ये मैं बीच में ये जो नेम्स हैं, this is how you have to arrange the references actually. Whatever references you are using in your literature review, all those references you have to put. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इट इज हैविंग द नंबर्स, ऑटोमेटिक नंबर्स है इसमें। सो मैं पहले तो इसको नंबरिंग को हटा रहा हूँ। ठीक है, आई एम रिमूविंग द नंबरिंग, सिलेक्ट करके मैं इस नंबरिंग को हटा देता हूँ। अभी जो कंटेंट है हमारा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। ठीक, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मुझे कंटेंट को सेट करना है, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट मैंने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर दिया है। It is required because maximum journals, whatever you will be referring for publishing your paper, they require that all the references should be arranged in alphabetical order. तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको करके बताया, ये पूरा अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो गया। ये होने के बाद फिर आप उसको न्यूमेरिक वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उसको नंबरिंग दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 देना है। ये जनरली IEEE फॉर्मेट में रहता है, जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबरिंग देते हैं फॉर रेफरेंसेस। तो ये आपके रेफरेंसेस बन गए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर रिसर्च पेपर कंटेंट्स। सो ये आपके वर्ड में फैसिलिटी बहुत आसानी से दिया हुआ है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है, ये सॉर्टिंग वाला फैसिलिटी है। ठीक, सो इसको ये आपके काम आएगा काफी। ठीक है, एंड ऑल्सो ये आपका रिप्लेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। वी ऑलरेडी नो रिप्लेस क्या करना है। कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, सो फाइंड किसको आपको फाइंड करना है और उसको किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, पूरे टेक्स्ट में आप कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे आई विल राइट विंजर एंड इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ फाइंड टेक्स्ट। ठीक, और विंजर नहीं है, विगर है, से विगर है। So I want to change, first I will select the text जिसमें मुझे सर्च करना है। वाइगनर है, सॉरी, WIGNER है, वाइगनर। So I want to find the text। तो यहाँ पे मुझे मिल गया वाइगनर जो है, और उसको मुझे रिप्लेस करना है विथ कैपिटल। So this also happens because this is also needed because many times the journal will tell you, give you some guidelines। जैसे आप अपना
जब थीसिस भी बनाएंगे, देन ऑल्सो यू विल बी गिवन सम गाइडलाइंस की कुछ चीजें कैपिटल्स में होनी चाहिए, कुछ चीजें जो है स्मॉल केस में होनी चाहिए, कुछ चीजें जो है वो इटैलिक्स में होना चाहिए, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. सो ये रिप्लेस वाला ऑप्शन भी काफी हैंडी है, यू कैन इजीली यूज इट. ये फाइंड वाला ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक इन योर एंटायर रिसर्च डॉक्यूमेंट दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट. सो यहाँ पे जो है टॉपिक्स वगैरह सर्च करना हो बहुत आसान हो जाता है. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रिजल्ट बताएगा जहाँ पे भी आपने सोचा है कि आपको ढूंढना, जैसे 134 मुझे ढूंढना है, सो तुरंत आपको रेफरेंस बताएगा 134 कहाँ दिख रहा है. यहाँ पे देखिए हाईलाइट करके बता रहा है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट यू विल बी यूजिंग. ठीक, तो टेक्स्ट से रिलेटेड ही आपको ज्यादातर काम रहेगा. कहीं कहीं पे आपको जो है यू हैव टू इंसर्ट इमेजेस या टेबल्स, सो आपको वो भी जानकारी रखना पड़ेगा. आई विल टेल अबाउट दोस थिंग्स आल्सो. अच्छा, जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको अपर केस सॉरी इसको आपको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट बनाना हो किसी चीज को, जैसे ई है यहाँ पे ई लिखा हुआ है. सो आई वांट टू मेक इट एज सुपरस्क्रिप्ट. तो सुपरस्क्रिप्ट वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है, यू हैव टू क्लिक दैट, दैट बिकम्स योर सुपरस्क्रिप्ट. ये भी आपको जरूरत पड़ सकता है, कई बार जरूरत पड़ता है, फॉर्मूलाज बनाने में जरूरत पड़ सकता है. इसको अगर सबस्क्रिप्ट बनाना हो तो सबस्क्रिप्ट बन जाएगा. ठीक, दीज आर द ऑप्शंस गिवन हियर. ठीक, और कई बार क्या होता है कि यू हैव टू कैपिटलाइज ईच वर्ड, दैट इज टू पुट कैपिटल लेटर्स ऑन द स्टार्टिंग ऑफ ईच वर्ड. ये कभी कभी जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन हमारे पास है, चेंज केस का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड करके एक ऑप्शन है, यू हैव टू पुट दैट ऑप्शन. सो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, देखिए सब स्टार्टिंग जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो चुके हैं, तो स्टार्टिंग लेटर्स है वो कैपिटल हो चुके हैं. सो ये आपको काफी हैंडी रहेगा. सबको अपर केस बनाना हो तो भी यहाँ से आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं. सेंटेंस केस करना हो, सेंटेंस केस में जो है जनरली जो है वो स्मॉल केस में ही रहता है, और जो फुल स्टॉप लग जाता है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल केस आता है. ठीक है, दैट इज सेंटेंस केस. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे थ्योरी के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया और ऑफ लगाया है. सो लेट अस मेक इट सेंटेंस केस. देखिए सेंटेंस केस करते ही जो है वो स्मॉल ओ जो है वो कैपिटल ओ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से शुरू होता है कोई भी सेंटेंस. सो दिस इज वेरी हैंडी. इसमें क्या होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, because journals, whenever you are submitting your content in a reputed journal, they will expect that there is no typo error, there is no grammatical error, because whenever there is some grammatical or typo error, they will return back your research paper and tell you to correct it and resend it. So ये आप पहले से कर लें तो ज़्यादा आसान रहता है. So these are the very important options needed by the researchers. जैसे अभी मैंने बताया, सेंटेंस केस बनाना है, कैपिटल केस बनाना है, ठीक, या कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है. these are one of the very these are the very important tasks that you will be needing to do. तो बहुत बार ये चीज करना पड़ता है, तो ये शॉर्टकट्स हैं जिसको यूज करके आप जो है अच्छे तरीके से अपने रिसर्च पेपर को बना सकते हैं. ठीक, सो दिस वाज अबाउट बेसिक्स रिलेटेड टू द होम टैब. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ठीक है, यहाँ पे जो है कलर वगैरह जो है, इसको खैर इसको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आपके रिसर्च पेपर में. जो चीजें एकदम जरूरत पड़ेगी मैं वही चीज बता रहा हूँ. ठीक, अभी होम टैब से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है क्या, अभी जो अपन डिस्कस किए हैं? सर जो आपने ये इधर साइड में नेविगेशन बटन लेके आए थे, वो एक बार कैसे लाए थे बता दीजिए. हाँ, नेविगेशन बटन एक्चुअली फाइंड से आया था. ये जो आया था ना, फाइंड से आ गया था. ये दिख कैसे, रहा है ना, मतलब फाइंड. फाइंड, ओके 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 ओके, ठीक है. ये बहुत हैंडी आता है, बहुत ही, मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि जैसे ही आपका कंटेंट बड़ा हो जाएगा ना, आपको छोटी छोटी चीजें सर्च करने में बहुत हेल्प करता है. ओके आप इसमें लिख दीजिए, वो अकरेंस बता देगा कहाँ कहाँ पे वो रिपीट हो रहा है. ये काफी हेल्प होता है इससे. ओके सर.
इसमें ये एक्चुअली इट विल हेल्प यू व्हेन यू आर से यू हैव रिटन लिटरेचर सर्वे एंड इनसाइड लिटरेचर सर्वे यू वांट टू फाइंड आउट प्लेसेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट द ऑथर्स नेम। तो वो टॉपिक को जैसे आप टाइप करेंगे तुरंत उस लिटरेचर सर्वे में पहुंच जाएगा। वहां पे उसके आपके ऑथर का जो है रेफरेंस आप वहां पे दे सकते हैं या रेफरेंस नंबर आप वहां पे दे सकते हैं। तो ये आपको बहुत हैंडी रहता है, नेविगेशन का जो ऑप्शन है ओके तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब इसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। एक कंटेंट है यहाँ पे, लिटरेचर सर्वे से रिलेटेड, सैंपल कंटेंट बता रहा हूँ मैं अभी, जैसे सैंपल कंटेंट लेके जा रहा हूँ। ठीक, ये आपका रेफरेंसेस है। ये रेफरेंसेस वाला सेक्शन हो गया आपका। रेफरेंसेस के सेक्शन के ऊपर आपका रहेगा कंटेंट। सो दिस इज द कंटेंट यू आर हैविंग। ये पूरा टाइम्स रोमन में रहता है। ठीक, अब यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपको से कैपिटलाइज यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट लेटर करके जो है, से फॉर एग्जांपल दिस इज सम कीवर्ड से फजी लॉजिक, से यहाँ पे सोच लीजिए फजी लॉजिक लिखा हुआ है और ये आपका बहुत बड़ा कंटेंट है। उसमें से फजी लॉजिक आपको ढूंढ के निकालना है। तो फाइंड में जाएंगे, फजी लॉजिक लिखेंगे, आपको तुरंत बता देगा फजी लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट भी करके दिखा देगा। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो ऑथर का जो डिटेल ऐसे जो जो सेकंड ऑथर था उसका डिटेल आपको यहाँ पे लिखना था कि उसने प्रपोज किया है इसके बारे में, तो ये आसानी से आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ऐसे आपका कंटेंट तो बहुत बड़ा रहेगा, उसके अंदर से कीवर्ड्स को आपको याद रखना है कि कौन से कीवर्ड पे जाके आपको अपना रेफरेंस लिखना है, तो वहां पे आप पुट कर दीजिए। सो ये फाइंड वाला ऑप्शन आपको बहुत हेल्प करेगा। नेविगेशन वाला जो की है, जो पेन है, नेविगेशन पेन बोलते हैं इसको, सो दैट विल हेल्प यू लॉट। any more questions related to the current topic that we have discussed now, this home tab? नो सर। ठीक है, so okay, now I will take the attendance now. मैं attendance sheet share कर रहा हूँ। So hopefully all of you must be having this attendance sheet also with you. सबके पास है क्या? सर अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ये अटेंडेंस शीट मैं मेंटेन कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो ओके सर। आपका रोल, आपको आपका रोल नंबर्स मालूम है क्या? लास्ट रोल नंबर्स? नहीं सर, नहीं पता सर। नहीं पता है? नहीं पता। ठीक है, अभी इससे आई ना मैं कार्ड चैट, कुछ नहीं मिला है सर, बस अच्छा फीस अच्छा, कोई रिसीट बात मिला नहीं। है। अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, यही आपका रोल नंबर्स है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके सर थोड़ा यही रोल डाउन नंबर्स है, करिए ना सर, पूरे पूरा है ना? सर 1 से लेके लास्ट तक हाँ, एक बार 40 तक है, 40 तक है, स्क्रॉल कर देंगे नीचे तो अपना अपना देख 40 तक है। मैं स्क्रोलिंग करते जाऊंगा, ठीक है? सर धीरे सो आई विल धीरे टेक, जाएगा। आप सिर्फ प्रेजेंट बोलिएगा, मैं वहाँ पे जो है आई विल पुट ए मार्क देयर। सो जागृति किचरिया, जागृति किचरिया, मैं एब्सेंट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। जागृति, आई एम पुटिंग एब्सेंट हियर। नेहा वर्मा, प्रेजेंट सर। पुष्पराज मिश्रा, यस सर, प्रेजेंट सर। पुष्पराज मिश्रा प्रेजेंट। राखी देवांगन, चलिए, राखी देवांगन एब्सेंट। शुभम दशोरे प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। सर राखी प्रेजेंट है, शायद उसका आवाज आ रहा है। ठीक है, राखी देवांगन, बहुत धीरे आवाज आ रही है। ओके, प्रेजेंट प्रेजेंट, ओके। सौम्या, सौम्या, यस सर।
आप अपना रोल नंबर्स देखते जाइए, सबको दिख रहा है ना रोल नंबर्स? सभी को रोल नंबर्स देखते जाइए। देखिए अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे सबका रोल नंबर्स है। एक बार फिर से देख लीजिए। जागृति इज रोल नंबर 1, नेहा वर्मा इज रोल नंबर 2, पुष्पराज मिश्रा इज रोल नंबर 3, राखी देवांगन इज रोल नंबर 4, शुभम दशोरे रोल नंबर 5, सौम्या इज रोल नंबर 6, सुमित गुप्ता एबसेंट। ओके, अमित ठाकुर प्रेजेंट सर। रोल नंबर 8। ठीक है, अमिता मिश्रा Yes, sir. Present, sir. रोल नंबर 9, गार्गी Yes, sir. मिश्रा Yes, sir. Present, sir. रोल नंबर 10, लिलिमा जैन Present, sir. रोल नंबर 11, चिरंजीव राव प्रेजेंट सर। सर ये रोल सर नंबर 12। चिरंजीव राव का 12 नंबर है। आपने हाँ, रोल नंबर रोल नंबर 12 है चिरंजीव राव। जी 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 सर, जी सर। ठीक है। निकिता आहूजा एबसेंट। पद्मधर मिश्रा प्रेजेंट निकिता आहूजा प्रेजेंट। मेरा प्रेजेंट है। हाँ, निकिता रोल नंबर 13, पद्मधर मिश्रा Yes, sir. रोल नंबर 14 है, रविकांत सोनी रोल नंबर 15, अभिनव शुक्ला यस सर, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 16, ज्योत्सना प्रेजेंट सर। रोल नंबर 17, रश्मिता शर्मा जी सर प्रेजेंट। ओके, रोल नंबर 18, संजय शर्मा यस सर, प्रेजेंट। रोल नंबर 19, अभिनव अग्रवाल सर प्रेजेंट सर। रोल नंबर 20, विनोद कोशी रोल नंबर 21 प्रेजेंट सर। हाँ, माई 21 ना सर? यस 21। रोल नंबर 22, हाँ, रोल नंबर Present, sir. Present, sir. प्रेजेंट। ओके, रोल नंबर 23, नवीन सिंह यस सर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। रोल नंबर 24, PS मुरलीधर प्रेजेंट। रोल नंबर 25, श्री प्रभा Present, sir. प्रेजेंट। रोल नंबर 26, प्रेरणा द्विवेदी So, प्रेजेंट। रोल नंबर 27, रोमित कुमार प्रेजेंट। रोल नंबर 28, जयंत कुमार नायडू रोल नंबर 28, जयंत कुमार नायडू एब्सेंट मार्क कर रहे हैं। रोल नंबर 29, तुकाराम प्रेजेंट सर। रोल नंबर 30, तुषार रॉय चौधरी प्रेजेंट सर, रोल नंबर 31, निर्विकार हाँ जी सर बोलिए। प्रेजेंट सर। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है मिस्टर तुषार, आपका आवाज नहीं आ रहा। सर मेरे नाम के सरनेम में करेक्शन थोड़ा चाहिए, ये तो डब्लू है। ओके, मुझे जो मिला है यही मिला है। आप एक काम करें, कॉलेज में थोड़ा बात करके चेंज करवाइए नेम को। ठीक है, ओके सर। हाँ चलिए। निर्विकार गौतम रोल नंबर 31 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 32, अभिनव साहू प्रेजेंट सर। रोल नंबर 33, जितेंद्र चौहान प्रेजेंट सर। रोल नंबर 34, मनोज साव। यस सर। ठीक, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है। जिसको जाना है जा सकते हैं, मतलब जिसका अटेंडेंस हो गया। रोल नंबर 35, सतीश कुमार साव मेरा तो ये लोग आवाज ही नहीं सुनता लगता है। रोल नंबर 35, सतीश कुमार साव सर प्रेजेंट है, सतीश सर प्रेजेंट है। हाँ ठीक, प्रेजेंट लगा दिए। रोल नंबर 36, शेखर साहू रोल नंबर 36, शेखर साहू एब्सेंट मार्क कर रहे हैं।
नंबर 37 विनय कुमार साहू. रोल नंबर 37 विनय कुमार साहू. एब्सेंट. रोल नंबर 38 योगेश कुमार. प्रेजेंट सर. रोल नंबर 39 सीमा गुप्ता. प्रेजेंट सर. रोल नंबर 40 विक्रम ताम्रकार. रोल नंबर 40 विक्रम ताम्रकार. एब्सेंट. Excuse me, sir. हाँ, Can you बोलिए. listen me? Sir, Jagriti Khicharia is present. रोल नंबर क्या था मैंने बताया था? 1 था सर, रोल नंबर 1 था. रोल नंबर 1. ठीक, मैं अभी प्रेजेंट कर देता हूँ. जी, थैंक यू सर. एक सेकंड ना. जी. अटेंडेंस शीट एक्चुअली आपके सामने ही मैं इसलिए रख रहा हूँ, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. थैंक यू सर. हाँ, वेलकम. सो रोल नंबर 7 सुमित गुप्ता इज एब्सेंट and roll number 28 Jayan Kumar Naidu is absent. Roll number 36 Shekhar Sahu is absent. Roll number 37 Vinay Kumar Sahu is absent and roll number 40 Vikram Tamrakar is absent. ठीक, ये सही है ना? किसी का कोई एब्सेंट तो नहीं लग गया? नो सर, सब सही है. ओके, थैंक यू वेरी मच. आज का मीटिंग अपन यही खत्म कर रहे हैं. ओके सर, थैंक यू. हेलो. हाँ, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए. हाँ सर, कल भी इसी लिंक पे होगी मीटिंग. कल का लिंक कल ही मिलेगा. सर, कल तो नहीं है क्लासेस. कल नहीं है, वो शेड्यूल. नो सर. हाँ, शेड्यूल के हिसाब से ही होगा जो क्लासेस है ना. सर कल लैब है सर, आपका लैब है सर कल. अच्छा, लैब. एक मिनट, कल है ना? हाँ, फ्राइडे है ना? फ्राइडे है. हाँ, फ्राइडे. हाँ, लैब. सर एक्सक्यूज मी सर. जी.